all. I hope you all are good and happy. So today we will begin with the lesson number 5 of your class 4 EVS, that is animals life, reproduction in animals. You know, every living being reproduce. They reproduce to get their young ones. Animals also reproduce like the human beings. So why they reproduce? They reproduce because they don't want to disappear their variety from the earth. Like monkey reproduce to get their young ones, like a giraffe, lions also reproduce. So let's read the chapter. Have you seen a pigeon feeding its babies or a dog with its puppies playing around? क्या आपने देखा है पिजन को अपने बेबीज को फीड करते और डॉग्स को अपने साथ चारों तरफ घूमते हुए? Or when you look at a monkey hugging its babies, have you ever seen the monkey hugging its babies? Do you wonder at the similarity between animals and their babies? क्या आपने देखा है वो उनके जो बेबीज होते हैं उनकी तरह दिखते हैं? So why do animals have babies similar to them? क्यों होते हैं उनके बेबीज उनके जैसे? Like so because they reproduce of their own kinds. Every living being has the ability to give birth to one of its own kind. सब living being में ability होती है अपने जैसे दिखने वालों को बर्थ देने की. They reproduce or produce young ones to replace their old and dying forms. वो reproduce इसलिए करते हैं, जो अपने young ones होते हैं इनको इसलिए reproduce करते हैं, जो उनकी old form होती है वो खत्म होने वाली होती है, उनको replace करने के लिए, जो die होने वाले होते हैं उनको replace करने के लिए reproduce करते हैं. If they fail to produce their own kind, their form will disappear from the earth. अगर वो अपनी तरह रिप्रोड्यूस करने में, अपनी जैसे दिखने वालों को रिप्रोड्यूस करने में फेल हो गए तो उनकी जो फॉर्म है वो खत्म होती चली जाएगी. दे विल डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ. इफ फॉर एग्जांपल इफ अ डॉग डज नॉट रिप्रोड्यूस, देयर विल बी नॉट बी एनी डॉग लेफ्ट आफ्टर सम टाइम. आपने देखा होगा अगर डॉग्स रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो उनका जो जैसे दिखने वाले डॉग्स होंगे, डॉग्स ही खत्म हो जाएंगे थोड़े टाइम बाद. On the earth, the reproduction is an important process for every animal to continue its race. जो reproduction है वो एक बहुत ज़्यादा important चीज़ है, किस लिए? अपनी reproduction की process को continue करने के लिए. animals अपने जैसे अपनी own kind के reproduce करते रहें अपनी race के, इसलिए reproduction होता है जिससे वो अर्थ पे से endangered ना हो, खत्म ना हो. The process by which living beings reproduce another one of their own kind is called known as reproduction. जो process होता है अपनी तरह दिखने वालों को living being reproduce करते हैं, animals reproduce, the process is called reproduction. Giraffe also reproduce, humans also reproduce, horse also reproduce. Now living beings produce their own kind through reproduction. Living beings कैसे reproduce करते हैं अपने जैसे दिखने वालों को? Through reproduction. Now first question, how do animals reproduce? Animals कैसे reproduce करते हैं? Animals reproduce mainly two ways में reproduce करते हैं. First by laying eggs. Eggs देते हैं वो, उसमें से reproduction होता है, हैचलिंग होती है. बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस, या फिर अपने जैसे यंग वंस को बर्थ देने के बाद वो रिप्रोड्यूस कर देते हैं. नाउ एनिमल दैट लेज एग, वी विल टॉक अबाउट दोज एनिमल हु लेज एग्स. फर्स्ट, सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स. कुछ एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं किस तरह से? एग्स देके. बर्ड्स, इंसेक्ट्स, फिश, स्नेक्स and crocodiles are some animals that lay eggs. There are some animals, those who lay eggs are birds, snakes, crocodiles and insects. They lay eggs. Second, you have learned first is bird. You have learned earlier that the bird will nest for their babies. आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा पहले. bird क्या बनाती है? अपनी बेबीज के लिए घर बनाती है, उनको बर्थ देने के लिए नेस्ट बनाती है. They lay eggs in nest and sit on them for many days to keep them warm. वो क्या करती है? Eggs lay करती हैं, उनके ऊपर फिर बैठ जाती है to give them warmth for many days. और फिर उसके थोड़े दिन बाद क्या होती है? Hatchling होती है. The baby comes out from the egg. Before these eggs hatch into young ones, वो उनको warmth देती है जब तक वो उसमें से hatchling ना हो. All eggs are protected by hard brittle covering called the shell. किससे प्रोटेक्टेड होते हैं eggs? उनके ऊपर hard brittle covering होती है, उसको क्या कहते हैं? shell कहते हैं. Within the shell it is the abdomen
व्हाइट कलर का जो होता है दैट इज albumin, and the yolk is yellow part. The albumin protects the young bird and yolk is its food. क्या करता है albumin? जो क्या करता है उसको प्रोटेक्ट करता है और ग्रो करने के लिए, और योग क्या होता है वो फूड होता है. The young birds will only develop if the egg is kept warm. यंग बर्ड्स उसमें से जब भी डेवलप होंगी जब तक उसमें से एग को वार्मथ नहीं मिलेगी, जब तक उसकी मदर उस पर नहीं बैठेगी. नाउ कॉकरोचेस एंड ग्रासहॉपर्स. No, we have to read further on this page only. We have to read this. Birds lay eggs in the nest and sit on them for many days to keep them warm before they hatch. Birds क्या करती है, eggs देती है, फिर उनके ऊपर बहुत दिन के लिए बैठती है, फिर उसको warmth इतनी देती है कि जिससे eggs में से babies बाहर आए. The eggs hatch and the young ones that comes out have no feathers on their bodies. जो एग्स होता है वो हैच करता है, जो उसमें से यंग वंस निकल के आता है उसके ऊपर बॉडी पे कोई फेदर नहीं होता. The mother feeds the young ones until they are ready to fly away. मदर कब तक फीड करती है अपने छोटे बच्चों को, जब तक वो रेडी नहीं होते उड़ने के लिए. Now molting की definition, here is the definition of molting. Molting is a process by which the baby insects shed their skin before they grow into an adult. मोल्टिंग वो प्रोसेस होता है जो बेबी इंसेक्ट होता है अपनी स्किन को शेड करता है बड़े होने से पहले. इंसेक्ट्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंसेक्ट्स. ऑल इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज, ग्रासहॉपर्स, कॉकरोचेस एंड हाउसफ्लाइज ले एग. जो भी इंसेक्ट्स होते हैं, बटरफ्लाइज, हाउसफ्लाइज, ग्रासहॉपर्स, कॉकरोचेस, सब क्या करते हैं, एग ले करते हैं. द यंग वंस दैट हैच आउट ऑफ द एग्स लुक वेरी डिफरेंट. जो यंग वंस होते हैं वो उसमें से जो निकल के आते हैं वो एडल्ट से बहुत ज्यादा डिफरेंट दिखते हैं. फ्रॉम द एडल्ट ड्यूरिंग देयर ग्रोथ दे कीप चेंजिंग देयर अपीयरेंस बाय शेडिंग देयर स्किन एंड डेवलप इनटू एन एडल्ट. जब उनकी ग्रोथ हो रही होती है वो बहुत ज्यादा उनमें चेंजेस आते हैं, कभी स्किन शेड करते हैं, कभी कुछ होता है, उनके फीचर्स चेंज होता है, फिर वो अपने एडल्ट की तरह दिखने लगते हैं. द प्रोसेस इज मोल्टिंग. Molting is the process through which the insects shed their skin to grow as an adult before growing as an adult. Next is cockroaches and grasshoppers lays eggs that hatch into smaller babies called nymph. जो cockroaches और grasshopper होते हैं वो eggs lay करते हैं into smaller babies. जो उस process को क्या कहता है, उसको क्या कहता है, nymph कहते हैं. Like eggs हुए, फिर nymph हुआ, फिर होता है adult. जो उनके babies होते हैं उनको हम कहते हैं nymph. They resemble their parents but are small and do not have wings. वो अपने पेरेंट्स की तरह रिजेंबल करते हैं बट उनके पास विंग्स नहीं होते, बहुत छोटे होते हैं. आफ्टर मोल्डिंग सेवरल टाइम्स दे बिकम्स एडल्ट. मोल्डिंग होती है, उनमें स्किन रिमूव होती है, वो बहुत टाइम के बाद वो एडल्ट बन जाते हैं. बटरफ्लाइज एंड हाउस फ्लाइज ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स. बटरफ्लाइज होती हैं और हाउस फ्लाइज होती है, आपने देखी होगी अपने घर के अंदर, वो भी एग्स ले करती हैं. Which hatch into a small worm rather than insects. वो small worm में hatch होती है, उनमें से छोटा सा कीड़ा निकल के आता है, इंसेक्ट नहीं होता वो. This worm is larva. उसको क्या कहते हैं हम, larva कहते हैं. The larva of a butterfly is called caterpillar. जो उनके बेबी होते हैं उसको larva कहते हैं, और जो बटरफ्लाई का larva होता है उसको क्या कहते हैं हम, caterpillar कहते हैं. This is the caterpillar. And that of a housefly. Housefly को क्या कहते हैं हम, maggot. हाउसफ्लाई के बेबी को कहते हैं maggot. During the life cycle of a butterfly, the caterpillar feed on green leaves. जो लाइफ साइकिल होती है बटरफ्लाई की, जो छोटा होता है कैटरपिलर के, उसमें फीड करता है ग्रीन लीव्स को फीड करता है. ग्रीन लीव्स खाता है वो, उसके ऊपर फीड होता है ग्रीन लीव्स के ऊपर. एंड बिकम्स वेरी प्लम्प एंड स्लगिश. और बहुत ज्यादा सॉफ्ट और प्लम्पी और स्लगिश हो जाता है वो. व्हेन इट कैन नॉट ईट anymore, it converts itself into a case called cocoon. जो वो ज्यादा नहीं खा सकता वो कोकोन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है अपने आप को. This is made from the thread that comes out of the caterpillar's body. वो किससे बना होता है, जो कैटरपिलर की बॉडी से जो थ्रेड निकलता है उसको कोकोन कहते हैं. This stage is pupa. उस स्टेज को क्या कहते हैं, pupa. The stage is
प्यूपा, आफ्टर कमिंग द थ्रेड निकल के आया उसमें से, उसका प्यूपा बना। The large caterpillars undergoes metamorphosis inside the cocoon. जो large caterpillar होता है वो मेटाफॉर्स की अंडरगोज करता है, मतलब उसमें से निकलता है। Change in the form, structure or function of a living organism while the process of growth or development is metamorphosis. जो उसमें changes आते हैं, वो growth होती है, उस process को क्या कहते हैं? The process is called metamorphosis. After a few weeks, the cocoon split open and the beautiful with the wet wings. कुछ टाइम बाद जो कोकोन होता है वो स्प्लिट होता है, फिर वो ओपन होता है, उसमें से क्या निकलता है? वेट विंग्स निकलते हैं। comes out, it dries its wings into the sun and flies away. फिर वो अपने वेट विंग्स को ड्राई करता है सनलाइट में, फिर then it flies away, उड़ जाता है वो कोकोन। Fishes and frogs lay many eggs in water, a plant as a safe place. Fishes और frogs कहाँ पे ले करते हैं? अपने वाटर के अंदर ले करते हैं, because it is a safe place. These can be easily seen or observed during rainy season. वो कब देखने को मिलते हैं? वो rainy season की टाइम देखने को मिलते हैं। The young ones of a fish is called a fry. जो fish का young ones होता है उसको कहते हैं हम fry. The eggs of a frog hatch into a tadpole. जो eggs के small होते हैं उसको क्या है, किस में hatch होता है? वो eggs किस में hatch होता है frog के? Young ones tadpole में, उनके babies को कहते हैं tadpole. That resembles a small fish rather than a frog. वो स्मॉल फिश की तरह दिखता है बल्कि फ्रॉग की जगह दिखने की बजाय। टेडपोल हैव अ टेल एंड नो लेग्स। टेडपोल में टेल होती है बट लेग्स नहीं होते। दे ब्रीथ थ्रू गिल्स। वो किसके थ्रू ब्रीथ करता है? गिल्स के थ्रू ब्रीथ करता है। आफ्टर फीडिंग ऑन पॉन्ड वीड्स फॉर अ फ्यू वीक्स दे ग्रेजुअली चेंज इनटू अ यंग एंड देन अडल्ट फ्रॉग। कुछ वीक्स के बाद पॉन्ड में वो रहने के बाद वो किस में फॉर्म होता है? फ्यू वीक्स के बाद दे ग्रेजुअली चेंज इनटू अ यंग। वो धीरे धीरे अपने यंग में डेवलप होता है, फिर देन वो फ्रॉग बन जाता है। इन दिस प्रोसेस यू कैन सी इट इज अ एग, देन इट बिकम्स tadpole, then this, then a young frog, then a big adult. This is the life cycle of a frog. Now next page, reptiles. Reptiles क्या होते हैं? Lizard, turtles and snakes also reproduce by laying eggs but do not take care of their eggs. जो lizards होती है और tadpoles, turtles होते हैं, snakes होते हैं, वो अपने eggs भी देते हैं but वो अपने eggs का टेक केयर नहीं करते। Many of their eggs are usually eaten by other animals. तो क्या होता है? Other animals उनके babies को, young eggs को खा जाते हैं। Some of eggs are warmed by the sun and hatch. कुछ eggs क्या होता है? सनलाइट से वार्मथ हो जाती है, उनको वार्मथ मिल जाती है और देन हैच कर जाते हैं। Only a few animals grow into adult. कुछ ही eggs ग्रो कर पाते हैं एडल्ट फॉर्म में, नहीं तो सारे बेकार ही हो जाते हैं। Crocodiles make a nest for their eggs on the ground. Crocodiles कहाँ पे eggs के लिए नेस्ट बनाते हैं? अपने ग्राउंड में बनाते हैं। When the eggs hatch, they carry their young ones into the water and look after them for some time. जब वो eggs hatch हो जाता है फिर वो अपने क्या करता है? अपने बेबी का धीरे धीरे वाटर में ले जाता है, फिर उनकी टेक केयर करते हैं। बेबी टर्टल हैच ड्यू टू द वार्मथ ऑफ द सन। बेबी टर्टल क्या होता है? वो किसकी हेल्प से हैच होता है? सन की वार्मथ से हैच होता है, नहीं तो उसकी जो उसकी मदर है वो उसकी टेक केयर नहीं करती। सेकेंड, एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एनिमल्स। अब तक हमने वो पढ़ा जो एग्स देते थे, और जो अब हम वो पढ़ेंगे जो एनिमल्स यंग वंस को बर्थ देते हैं। Some animals do not lay eggs but give birth to young ones. कुछ animals होते हैं जो eggs नहीं देते but अपने young ones को birth देते हैं। Such animals are called mammals. उन animals को क्या कहते हैं? हम mammals कहते हैं। This group includes animals like dogs, cats, monkeys, tiger, cows and also humans. वो उसको किसको include करता है? इसमें कौन कौन से अपने young ones को birth देते हैं without eggs? Dogs, cows, buffaloes, lions, lions, humans. The young ones of the mammals develop inside the mother body. जो उनके young ones होते हैं वो कहाँ पे develop होते हैं? अपनी mother की body के अंदर। After they are born, they feed on their mother's milk till they learn to feed themselves. वो जब born होता है वो कब तक जब तक अपनी कुछ और खाना नहीं सीखते, जब तक वो अपनी mother का milk पीते हैं। They feed on their mother's milk till they learn to feed themselves.
In this picture, there is a tiger and a cub. A tiger is taking care of a cub. In this picture, there are cats and kittens. In this picture, there is cow and calf, which they are taking care of their young ones. Next page. Whales and dolphins that live in water also give birth to babies. जो whales और dolphins होती हैं जो water के अंदर रहती हैं वो भी babies को birth देती है, eggs को नहीं. They do not lay eggs like fish. Bats which fly in the air reproduce by giving birth to young ones. जो bats आपने देखा होगा वो भी fly करते हैं, they are also the insect, but वो अपने young one को birth देते हैं, eggs में नहीं देते. Whales, dolphins and bats are mammals. इसलिए उन्हें मैमल्स कहते हैं. व्हेल्स, डॉल्फिन एंड बैट्स आर मैमल्स. टेकिंग केयर ऑफ यंग वंस. कौन कौन अपने बच्चों का ध्यान रखता है और कैसे रखता है? बर्ड्स एंड मैमल्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस फॉर लॉन्गर टाइम देन अदर एनिमल्स. बर्ड्स और मैमल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा लंबी समय तक अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं lesser than other animals. Birds will nest for their eggs and look after their young ones. Birds क्या करती है? नेस्ट बनाती है अपने यंग वंस के लिए और उनका ध्यान रखने के लिए. Their babies have no feathers. बर्ड्स के बेबीज पे कोई फेदर नहीं होता. वो जब तक उनकी टेक केयर करती है जब तक वो they cannot fly in the air. So the parents bird keep them warm and get food for them. जो पेरेंट्स बर्ड होती है उनको वार्म रखती है क्योंकि उनकी बॉडी पे फेदर नहीं होता, उनको ठंड लगती है और उनके लिए खाना लाती है जब तक वो बड़े नहीं होते. Human and other mammals also show a lot of parental care. Humans हैं और जो other mammals हैं वो अपने parental care बहुत ज़्यादा करते हैं, आपके मम्मा पापा का बहुत टाइम तक ध्यान रखते हैं. Animals like dogs, cats, lions, etc. take care of their young ones. Once like your parents look after you. Animals होते हैं जैसे dogs, cats, cows होते हैं वो जब तक अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं like your father and mother. आपके father और mother की तरह. This type of care is not seen in some animals. ऐसी केयर कुछ एनिमल्स में देखने को नहीं मिलती. Like snakes, they do not care of their babies, turtles, frogs, etc. They do not take care of their babies. They just ensure that their eggs are laid in a safe place. वो बस ये ध्यान रखते हैं कि उनके eggs कहीं safe place पर लेकर है, बाकी उनको warmth भी नहीं देते, उनकी take care भी नहीं करते. Now let's read some important point of this lesson. First, living beings produce one of their own kind to replace their and dying forms. Living beings क्यों reproduce करते हैं? अपने जैसे लोगों को बनाने के लिए, और जो उनकी dying forms होती हैं मतलब जो उनको replace करने के लिए, जैसे उनके जो बड़े हैं वो मर रहे होते हैं, वो die कर रहे होते हैं, उनको replace करने के लिए they need to reproduce to काउंटिंग देयर काइंड ऑन द अर्थ. वो रिप्रोड्यूस इसलिए करता है अपनी काउंटिंग बनाए रखने के लिए अर्थ पे. सम एनिमल्स ले एग्स एंड अदर गिव बर्थ टू यंग वंस. कुछ एनिमल एग्स ले करते हैं, कुछ बर्थ देते हैं अपने यंग वंस को. अमंग एनिमल्स बर्ड्स एंड मैमल्स गिव मोर पेरेंटल केयर देन अदर एनिमल्स. बर्ड्स कुछ एनिमल्स और बर्ड्स अपने और मैमल्स अपने young ones को ऐसी parental care देते हैं other than other animals like snakes and turtles does not give any parental care to their young ones. That's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a nice day.